حضرت مولا علی جب آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی اور آپ کی شادی کی بات وغیرہ کا موقع آیا تو حضرت عمر نے، صدیق اکبر نے اور دوسرے آپ کے دوستوں نے، جب آپ جوان بھی ہو گئے تو آپ کو آپ کے دوستوں نے مشورہ دیا، کہا کہ حضور علیہ السلام سے رشتہ مانگ لو، حضرت فاطمہ کو مانگ لو، حضور سے عرض کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میرے کو تو شرم آتی ہے، میں ایسی بات حضور سے نہیں کہہ سکتا، تو کہا کوئی عورتوں سے کہلوا دو اور کسی سے کہلوا دو اور حضرت فاطمہ اپنے لیے مانگ لو۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میرے کو تو شرم آتی ہے عورتوں کو بھی بھیجتے ہوئے اور خود بھی کہتے ہوئے، مگر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے، بس من میں خیال آ گیا، وہ بھائیوں نے، دوستوں نے جو بات کی تھی کہ پیغام دے دو، وہ پیغام والا کا دماغ کے اندر خیال آیا۔ حضور نے فرمایا علی کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہا حضور ویسے ہی کچھ بات دماغ میں آ گئی ویسے ہی۔ فرمایا علی تمہارے تو بات بعد میں آئی ہے، لیکن یہ جو تمہارے دل میں آئی ہے نا، یہ کام تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا ہے۔ کہا اچھا، کہا فاطمہ تمہاری نکاح میں دے دی جائے گی، ایسا حکم ادھر سے آیا ہے۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کی خدمت میں رہا ہوں، آپ کی تربیت میں رہا ہوں، اور آپ کا جیسا بھی حکم۔ فرمایا کہ تم بندوبست کرو، ولیمے کے واسطے بھی کچھ پیسے چاہییں گے اور دلہن واسطے کوئی کپڑے جوڑے وغیرہ اس کے واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے، تو تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک تو تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ زرہ بیچ دو۔ زرہ ہوتی حفاظت واسطے، اور جو حضور کی محبت میں جو دیوانے ہو گئے انہوں نے زرہ ویسے ہی اتار کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا ہم کو تو شہید ہونا ہی ہے، ہمیں بچ کر تھوڑی آنا، ہم کو تو شہید ہی ہونا ہے۔ ایسا بھی بعضوں سے ہوا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، حضرت علی نے کہا انشاءاللہ کوئی ایسی کوئی کوشش کرے گے، زرہ وغیرہ بھی ہوگا تو بیچ دیں گے۔ ایسا ارادہ کیا۔ وہ یوں کرتے کرتے 2-4 دن گزرے، اور اس طرح کی بھنک اور اس طرح کی سوچنا اور اس طرح کا ایسی ہوا عثمان غنی کو پہنچ گئی کہ حضرت علی زرہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہت پیسہ دے رکھا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ گئے عثمان غنی حضرت علی کے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا اور کیا حال چال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ میں نے سنا آپ زرہ بیچنا چاہتے ہو۔ آپ نے کہا ہاں زرہ بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیا کریں گے؟ زرہ مجاہد تو ویسے ہی میدانوں میں لڑتے ہیں۔ کہا ٹھیک۔ عثمان غنی نے کہا اگر آپ مجھے دے دو تو مجھے بیچ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ لے لو گے تو گھر کی چیز گھر میں رہ جائے گی، دوسروں کو کیوں دیں؟ آپ کے ہمارے دوستی ہے، گھر جیسے سمبند ہے، تو زرہ آپ ہی رکھ لو اور کیا ہے۔ عثمان غنی نے کہا حضرت ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟
کہ जीरा का जो बाजार भाव होगा वो मैं नहीं दे सकूंगा। जीरा जितने की भी है बाजारी एतबार से जो उसकी कीमत है वो मैं नहीं दूंगा। तो हजरत अली ने कहा वो आपसे हम कब मांग रहे हैं, आप तो जो समझ में आए दे देना, हम तो क्या है कि आपको दे देंगे, यूं थोड़ी कहेंगे इतने क्यों दिए उतने क्यों दिए। हाँ ये बात है, वादा है का वादा। गए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, जितनी उस कीमत की बाजार भाव से कीमत थी जीरा की, उससे 8 गुना ज्यादा रकम ला करके हजरत अली के सामने पेश कर दी। हजरत अली ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, इतने के तो है ही नहीं है। उस्मान गनी ने कहा इतने बितने की बात ही नहीं हुई थी, हमने तो पहले ही कह दिया था कि बाजार वाला भाव तो हम नहीं देंगे आपको, हम तो हमारे हिसाब से दे देंगे, और आपने कह दिया हम ले लेंगे, ऐसी क्या बात है, आप दोगे जो ही ले लेंगे। बोलो उस्मान गनी ने किस तरह वो हजरत मौला अली की खिदमत और आपका मतलब अदब और एहतराम किस तरह किया। हजरत अली ने वो पैसे रकम आपने रख ली, अब साहब वो खर्चा वगैरह हो रहा है। शादी का जब दिन था, निकाह हुई, अब आपके हमारे यहाँ तो फिर आप लोग को भाई वक्त तंग है, अब आप और कहीं जा रहे हैं मगर जाना पड़ रहा है। मुआशरे के अंदर इस तरह के फेल फितूर चालू है, बहुत सी जगहों पर बारातें वगैरह जा रही है। आप राजस्थान भी चल करके देखो, और आपके यहाँ शायद भी होता होगा, बारात जा रही है ना तो बारात के अंदर 3-4 तो बसें होनी जरूरी है, और कम से कम 35-40 फोर व्हीलर, एक से एक गाड़ी, और बढ़िया से बढ़िया VIP किस्म के लोग। सामने वाले को कह देते हैं कि हम 400 आदमी ला रहे हैं, 300 आदमी ला रहे हैं, वो बेचारा क्या सब इंतजाम वगैरह करता, लियो भाई 400 लियो 500 लियो। बारात का पुराने जमाने में कोई रस्म ही नहीं थी, निकाह मस्जिद के अंदर होती थी, आज भी मस्जिद में हो रही है, लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा माहौल बना हुआ है, मैरिज हॉल बने हुए हैं। आप बंबई वगैरह जाकर के देखो और दूसरे इलाकों में जाकर देखो, आपके यहाँ तो फिर माहौल अल्हम्दुलिल्लाह जरा सही लग रहा है। बारात का मतलब असल ये था, बारात रात, नाइट, समझे आप, बारात। बारात किसको कहते हैं? जैसे मैं कह दूं कि भाई एजाज बड़ा बाअमल है, ये हमारे पास आता है, बड़ा बाअदब है। बाअदब का मतलब अदब वाला, बाअमल का मतलब अमल वाला। तो पुराने जमाने में जब दूल्हे को, वराजे को, जब वह निकाह के लिए लड़की के गांव ले जाते थे, तो क्या है कि 5-7 आदमी लोग अपने साथ कर लिया करते थे। मामे हैं कि काके हैं कि वो साथ ले लेते उनको, और 10-12 आदमी उस गांव जाते थे, और वो क्या है कि बैल गाड़ियों पर, ऊंटों पर, इस तरह वो जाते थे। और फिर क्या होता था कि वहाँ दोपहर को वहाँ जाते, खाना वगैरह होता, फिर उसके बाद सीखें वगैरह होती, रुखसती होती, विदाई होती, शाम पड़ जाती थी। जब शाम पड़ जाती थी ना, तो फिर वो लोग वहाँ से अपने गांव के लिए दुल्हन को लेकर के वापस आते ना, तो आसपास रास्ते में जो गांव आते थे, वो गांव वाले कहते थे बारात आई है, बारात आई है, यानी रात वाले आए हैं, रात वाले आए हैं, रात वाले आए हैं। वो यूं हो गई बारात। बारात का मतलब नहीं है ढोल बाजे दमा करना, नाचना गाना, उछल कूद करना, और बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह ले जाना, बड़े बड़े साफे बांधना, ये सारी चीजें कुछ नहीं। इसलिए हाँ 5-7 आदमी, 8-10 आदमी ले लेगा, हाँ भाई चलो भाई चलो, आमंत्रण वगैरह, वो विजिट, वो कार्ड बनते हैं साहब, शादी कार्ड, उस पर बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हदीस शरीफ, बीर, ये बीर, वो बीर, कईयों के नाम वगैरह, और वो कार्ड वगैरह दिए जाते हैं। फिर वो कार्ड वाले वहाँ बेचारे जाते हैं दावत के अंदर, वो दावत में जाते रहते हैं, और एक वो मंडप टाइप लगा रहता है, टेबल कुर्सी लगी रहती है, वो बैठे हैं जैसे कोई होटल के बाहर बैठे रहते हैं ना, वो काउंटर पर,
इस तरह हाँ भाई लो साहब 200 रुपये रखो, उधर रोटी खाई, इधर आकर पैसे लगाए, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, दूल्हे से मुसाफा किया, चले गए। ये क्या है भाई? खाने के कोई पैसे दिए जा रहे हैं कि वलीमा तो सुन्नत है, सुन्नत के वास्ते ऐसा कैसा बदला आ गया सामने वाले को कर रहे हो। हाँ वलीमा क्या है? लड़के वाले के लिए, लड़की वाले के लिए कुछ नहीं है। लड़की वाला अगर चाय पानी पिला दे तो उसकी मेहरबानी है, समझ रहे हैं? मगर क्या आएगा बेचारे लड़की वाले को भी खाना खिलाना पड़ता है। आओ भाई जाओ भाई, खाओ भी पियो भी, लो ये लो वो लो। और आजकल तो दुनिया फाट रही है साहब, कैसा क्या क्या बारातियों के लिए बाजे क्या पहले से लड़की वाले कहते हैं कि एक एक बैग है, एक एक ये है, एक एक गाड़ी है। इस तरह का सारा काम सिर्फ दुनिया में दिखावा ही दिखावा रह गया। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस दिन आप मतलब वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ दूल्हा बन करके जा रहे थे, एक तरफ सलमान फारसी हैं, एक तरफ हजरत अकील हैं, फारूक आज़म हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, बिलाल हबशी हैं, अनस इब्न मालिक हैं, अबू हुरैरा हैं। सहाबा किराम की नूरानी जमात है जो गाती बजाती नहीं जा रही है, नबी पर दरूद पढ़ती जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते जा रहे हैं। अब साहब वो निकाह वगैरह हो गई, वहाँ निकाह वगैरह हो गई तो ये होता है कि भाई दूल्हे को सलामी भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, और दुल्हन के लिए उसकी सहेलियाँ गिफ्टें वगैरह भी लाती हैं, और दूल्हे को भी उसके दोस्त कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। हज़रत फातिमा के भी कुछ गिफ्टें आई, हज़रत अली के लिए भी कल लोगों ने सलामी में कुछ पेश किया। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से बाहर निकल गए, दूल्हे बने हुए, निकाह वगैरह हो गई है, हज़रत उस्मान गनी ने मुसाफा की, हज़रत मुबारक हो साहब, सलामत हो आपको। कहा कि आज आपकी खुशी का शादी का दिन है, कहा हम एक गिफ्ट लाए हैं, आप कबूल फरमा लो। हज़रत अली ने कहा भाई गिफ्ट तो क्या है, तोहफा कबूल करना हुजूर की सुन्नत है, आप जो भी तोहफा लाए हो पेश कर दो। आपने अपने खादिम से कहा वो ज़ीरा ला करके पेश कर दो, वही ज़ीरा मंगा करके आपको पेश कर दी। हज़रत अली ने कहा ये क्या है? कहा भाई तोहफा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप अगर वो वापस अब कर नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा। हज़रत अली ने कहा ठीक है ले लेते हैं। देखो ना क्या इन लोगों का तरीका था, क्या अंदाज था सहाबा का। हम तो पहली बात किसी की मदद करते नहीं है, करते हैं तो हम जताए बगैर रहते नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने को हुजूर का, हुजूर के सहाबा का उसवा, उनका तरीका, उनकी हयात हमारे लिए नमूना है। हम उसी रह गुजर से गुजरें, हम उसी पगडंडी पर चलें, हम उसी रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज हमारे लिए भी आग बाग बनती नजर आएगी। और अगर हम आइट साइड चलेंगे तो फिर दोस्तों वो गुमराही में फंसेंगे, गुनहगारी के मुर्तकिब होंगे। अब साहब क्या है कि हजरत फातिमा की रुखसती हाथों हाथ हुई नहीं, की नहीं। हुजूर ने फरमाया थोड़े टाइम के बाद भेजेंगे, कोई बात नहीं। कुछ 4-5 महीने हुए तो हजरत अकील ने जो आपके घर में वगैरह जो बाया माया वगैरह थी उनके जरिए कहलवाया कि फातिमा को भेज दो। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहला, खुद ने तो कहा नहीं। अकील हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे, अबू तालिब के बेटे। आप मुस्लिम बिन अकील का नाम सुना ना आपने? ये इमाम हुसैन के चाचे के लड़के भाई थे, जिनको इमाम हुसैन ने करबला के अंदर, कूफा के अंदर वहां के हालात देखने के लिए भेजा था। चाचे के लड़के भाई थे। तो हजरत अकील ने दूसरों लोगों से भी और मायो बहनों से भी कहा कि भाई हुजूर से कहो कि फातिमा को भेज दो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना था, आपने फरमाया ठीक है, फातिमा को रुखसत कर देंगे। एक दिन तय कर लिया, कहा भाई फलां तारीख को फातिमा को रुखसती कर देंगे। वो दिन तय हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीने शरीफ की औरतों को और अजवाज मुताहरात वगैरह, वो उन सबको अपने घर पर बुलाया, उनके लिए खाना वगैरह रखा। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 2-4 दोस्तों के साथ सामने आकर के बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर गए, जहाँ पर औरतें वगैरह बैठी हुई थी। हजरत फातिमा बनी हुई, सजी हुई, दुल्हन बनी हुई औरतों के बीच में बैठी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब अंदर दाखिल हुए तो हजरत फातिमा की आदत थी, जब भी हुजूर अंदर आते थे तो हजरत फातिमा खड़ी हो जाती थी ताज़ीम के लिए। और हुजूर का भी ये तरीका था कि जब हजरत फातिमा को आप देख लेते कि फातिमा आ रही है तो आप बैठे होते तो खड़े हो जाते थे। ये शान है। तो हुजूर जो ही अंदर दाखिल हुए तो हजरत फातिमा खड़ी हुई, कुछ औरतें भी खड़ी हो गई हुजूर को देख करके। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजदीक गए। दुल्हन बनी हुई बैठी थी, खड़ी हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब हजरत फातिमा को देखा तो हजरत फातिमा की आंखों में आंसू डुबडुबा रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर पर हाथ रखा, फरमाया फातिमा रो क्यों रही हो बेटा, आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? क्या इसलिए तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि तुम्हारे कोई दुनिया में भाई नहीं है? फातिमा तुझे किस चीज ने रुलाया है, रो क्यों रही है? और रोने लगी। जब हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा जान इस बात पर नहीं रो रही हूं कि मेरा भाई नहीं है, तो कहा किस वजह से रो रही है बेटा? कहा कि मेरी माँ मुझे याद आ रही है, क्योंकि हजरत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। फरमाया कि जब बेटियां रुखसत होती है तो माँ छाती से लगा करके अपनी बेटियों को रुखसत करती है, माँ भी रोती है, बेटियां भी रोती है। आज मेरे लिए मेरी माँ तो दुनिया में है नहीं, मुझे मेरी माँ याद आ रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा फातिमा तुझे मेरी तरफ से माँ का भी प्यार मिलेगा, बाप का भी प्यार मिलेगा। बेटा तेरे को रोना नहीं, रो मत। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी हजरत फातिमा को, आपने ढारस बंधाई, तसल्ली दी। फातिमा चुप हुई, रोना कम हुआ। फिर जब रुखसत कर दिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीमा भी किया था हुजूर के हुक्म से, और पूरे मदीने शरीफ को सब लोगों को, आदमियों को, सबको दावत। हुजूर देख के पास बैठ गए थे, कहा जो भी आए उनको सबको खिलाते रहो, पिलाते रहो। ऐसा हुआ साहब के मदीना पूरा खा गया, मगर बरकत ऐसी की ऐसी। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। बहरहाल अब बाद लोग ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा को जहेज दिया था, तो भाई हजरत फातिमा को ही दिया था, बाकी आपकी 3 बेटियां, उनका जहेज आप नहीं गिनाते हो? उनको भी दिया था क्या? नहीं, उनको इतना नहीं दिया था। और इनको क्या कितना दे दिया था? कोई गाड़ी ट्रक भरे जितना दे दिया था? कोई मिट्टी के क्या ना, कोई परात है कि मिट्टी का कोई घड़ा है या गट्टी है। ऐसा तो था नहीं कि वो आटा पीसने वाली मशीन भी हुजूर ने दी होगी। मां ये तो बेचारी आज पैदा हुई है। वो घंटी जो हमारी पुरानी माइयां वगैरह चलाया करती थी।
بھائی اس طرح کی کچھ چیزیں حضور علیہ السلام نے کوئی 5-7 اس طرح کے آئٹم حضور نے عطا فرمائے. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی حضور علیہ السلام کے زیر تربیت رہے ہیں، حضور کے گھر میں ہی بڑے بڑے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے دیا ان کو. باقی دوسری بیٹیوں کے لیے جہیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ہاں حضرت زینب کے ایک ہار کا ذکر ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا، اور حضور علیہ السلام نے وہ ہار حضرت زینب کو گلے میں ڈال دیا تھا. وہ صرف ایک ہار کا ذکر آتا ہے، بڑا قیمتی ہار تھا وہ. آج کیا ہے کہ صاحب آپ کے ہمارے گجرات راجستھان میں تو پھر ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہے. آپ یو پی وغیرہ جا کر کے دیکھو اور دوسرے علاقوں میں دیکھو، اور خاص طور سے غیر مسلموں میں، کہ بھئی کار بھی مانگی جاتی ہے، بنگلہ مانگا جاتا ہے، یہ مانگا جاتا ہے، وہ مانگا جاتا ہے، اتنا مجبور کیا جاتا ہے. اور بعضی جگہ لڑکیاں مطلب یہ ہے کہ مار دی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ بھئی جہیز نہیں آیا، جہیز نہیں دیا. یہ جہیز ایک طرح سے دوستو دینا لینا اسلام میں ہے ہی نہیں. مگر کیا ہے کہ رسم پڑ گئی برادران وطن کے اعتبار سے. ہم نے آپ نے بھی وہ رسمیں اپنے اندر شادیوں میں کر لی کہ بھئی یہ بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے. اس دور میں ایسی باتیں کچھ تھی نہیں. اس لیے دھیان رکھنا چاہیے ایسی چیزوں کا کہ نہیں بھئی ہم کو تو انہوں نے اپنے کلیجہ نکال کر کے دے دیا ہے. لڑکے والوں کو تو شکر کرنا چاہیے کہ بیٹی دے دی انہوں نے، جس بچی کو اتنی سی لے کر کے 18 سال کی جوان کی ہے، اور جس بچی کے ہر طرح سے ناز نخرے اٹھائے ہیں، جس بچی نے اپنے بھائی کا، اپنی ماں کا، اور اپنا صحن، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سامان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جو بچی دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہے، ان گھر والوں کو یہی نہیں خیال آتا ہے کہ دیکھو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے یہاں آ گئی ہے، پھر بھی جہیز کی مانگ کے بھئی یہ بھی دو، وہ بھی دو بھی دو. تو ہمارے سے بڑھ کر کے کون ہے خیراتی، کون ہے مانگنے والا کہ ہمیں مطلب بیٹی بھی مل رہی ہے، اور ہم یہ بھی سوالات کر رہے ہیں.